So let's have a look now in periodic table. Just see the chapter in the periodic table. In this chapter, what we have to do? First of all, I am introducing periodic table, and this chapter will be common in class 9th as well as in class 10 children. Class 9th, we already study about the periodic tables, periodic properties like group, period. Then you're coming in class 10th, so you need to study about the periodic trends keyword. Basically, class 10th में अगर आपको बोर्ड का पेपर अच्छे मार्क्स अचीव करने होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करना है, आपको होल्ड करना होगा कीवर्ड्स के ऊपर। प्रॉपर की पूरी एक होता है प्रॉपर चैप्टर कंटेंट वाइज यू शुड हैव proper knowledge, then you are able to attempt all the board questions, children. Now, so now come on, now come to the next, the periodic table. See the beautiful periodic table over here, very attractive, colorful, beautiful table. And this table you are able to see this, they are alkaline metals, highly reactive. They are alkaline earth metals, okay, and that side they all are the non-metals, children. Between the metals and non-metals, they all are known as the transition element, and these two, the separate periods now they known as inner transition elements. And why they name is inner transition? Because they are coming from the transition element, children. So we can say that with the help of this beautiful and attractive table, I will explain the definition. And what is the proper definition? Periodic table is the table. With the help of this table, we can study about the elements in the systematic or proper manner by chemical properties as well as physical properties. Okay, children? So this is the introduction of my chapter, periodic table, children. And if you have any query, like suppose बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, और बहुत सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर, बच्चे जाते हैं उनको इंग्लिश में कंटेंट में प्रॉब्लम होती है, तो सारे कंटेंट्स में हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। पीरियोडिक टेबल एक वो कंटेंट होता है, टॉपिक होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी कर सकते हो, उसके फैमिली के बारे में जान सकते हो। जैसे कि आप किसी की फैमिली के मेंबर से मिलते हो तो उसके पूरी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, नेचर के बारे में आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, क्या इसका एटीट्यूड ऐसा है, नेचर ऐसा है, तो ये इस फैमिली को बिलोंग करता होगा, इसके घर में ऐसा ही होता होगा। हम लोग ऐसे हाइपोथेटिकल थिंकिंग रखते हैं ना, अनुमान लगा लेते हैं बैठ के, बिल्कुल वैसे ही कोरिलेट कर सकते हैं हम पीरियोडिक टेबल को। सो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सिस्टमैटिक मैनर में हमें स्टडी करना है। नाउ in the periodic table, now come to the next one, the main contribution. You see the beautiful, just see the, I think you are able to see the picture over here. The name is Russian chemist, the name is Mendeleev. Begin looking for the pattern along the properties of the known elements. Basically, children, Mendeleev contributes a lot in the periodic table. He did very hard work, and that is why in the Mendeleev periodic table we will study the basic law. जो basic law होता है Mendeleev का, वो law ये होता है elements arranged in the increasing order of atomic masses. Atomic masses are, like that atomic number and atomic masses. तो atomic masses is the keyword in this trend, this property. Mendeleev ने atomic masses के trend पर elements को arranged किया था. Just see in the next clip. Just see properties of the elements are periodic. Mendeleev saw that the properties of the elements were periodic. That means जब मेंडलीव ने स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि जो एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज थे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी उसी पीरियोडिक के में रिलेटेड रख रही थी, रिलेशंस रख रही थी, तो उसको पीरियोडिक बोल दिया। और ये बताया है अरेंजमेंट ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। बेसिकली इसकी मेंडलीव की टेबल में एटॉमिक मास को लेकर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अब कैसे किया गया है, उस टाइम पर पीरियोडिक टेबल कैसी लग रही थी, आपके बुक में भी गिवन होती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। जस्ट सी द वे, ब्यूटिफुल मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द ड्रॉबैक। मेंडलीव का हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी चिल्ड्रन उनकी ये वाली टेबल जो थी ना, वो प्रॉपर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स ये इनका लॉ
फ्रूटफुल नहीं हो पाया, नहीं उसमें हुआ, इसमें कुछ कुछ जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको नेक्स्ट कमिंग साइंटिस्ट ने रिमूव करके उसमें कहते ना डिस्कवरी करके फिर एक मॉडर्न फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन क्या क्या कमियां थी, लाइक मेंडेलीव रिकॉग्नाइज दैट देयर वर एलिमेंट्स मिसिंग फ्रॉम द टेबल। मेंडेलीव की टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे। मेंडेलीव इज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इवन। मेंडेलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स में कोड हो जाते हैं। दे ऑल आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ नेक्स्ट, नाउ जस्ट सी, this is a Mendeleev table now. You can see this table clearly if you are able to see. Just see hydrogen 1, then lithium mass, atomic mass 7, then beryllium 9.4, then boron 11, then carbon 12, then nitrogen 14, then oxygen 16, then fluorine 19. So what you are able to see? You are able to see element were arranged in this periodic table in the increasing order of atomic mass. But what will happen? Just see here lots of problem, like just see the red block, just approx the masses, few elements missing from the table, few elements placed in the same group and having the different properties, few elements placed in different group having the same properties. So due to the drawbacks, lots of drawback, this Mendeleev periodic table is discarded and failed. And coming to the next, Moseley and the next form of the periodic table, just see changing the arrangement. Mendeleev noticed that a few elements were not in the correct places when placed by increasing atomic masses. 1914, British chemist Henry Moseley. Children, please, you need to stuck and learn the name Henry Moseley, because Henry Moseley जो टेबल आप बुक में देखते हैं, जो टेबल क्लास 11th में स्टडी करते हैं, क्लास 9th में स्टडी करते हैं, वो टेबल मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है, उसको मोसले ने प्रपोज किया था और मोसले के अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी भी कर पाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले is resulting of the experiment was able to determine the number of proton in the atoms, the atomic number. As you know, very easy formula of class 9th you study about. What is atomic number? Atomic numbers define the number of proton equals to number of electrons. Simple सी बात है, जितनी भी प्रॉपर्टीज कोरिलेट हो रही थी तो वो सारी किस पर डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? एग्जैक्टली, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर। सो अकॉर्डिंग टू मोसले पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक number and the properties are depends upon the atomic number. Now just see the next one. See, Henry Moseley, he discovered, he just study about the properties of element, he go through the properties, the valency and lots of things. So just see all the periodic functions, all the physical properties, chemical properties, periodic trends related to the valence electron, related to the number of protons, number of electron. Or you know that what is number of proton and electron? It is atomic number. Is clear now? Now come to the next one. Just see, just see now the discovery of each new element is opposed to the periodic law. Periodic law आता है बच्चों के लिए एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है और प्रॉपरली क्या होता है। बच्चा इतना कुछ पढ़ता है, पीरियड्स, ग्रुप, मेंडलीव, ग्रॉबर्नियर, मोसले, कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाता है कि व्हाट इज पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ स्टेट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल मीन है इसका, सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? उसके एटॉमिक नंबर पर। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी टिल नाउ हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओनली इंट्रोडक्शन विद द डिस्कवरी। इज इट क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट। जस्ट सी द ब्यूटिफुल classification and attractive periodic trends and properties. You see the next clipping. In the next clipping you see, just see finding your way around the periodic table and classified of now elements. Elements classified in the metals, non-metals, metal-wise,
and noble gases. In previous classes, children, हम जब previous classes की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है there are 4 types of elements. The 4 types of elements are, what are the 4 types of elements? Metals, non-metals, metalloids and noble gases. But here in class 9th and 10th is basically in class 10th now, आपको पता होना चाहिए, you should know there are 4 types of elements: representative, transition, inner transition, noble gases. You should know this कि these are the types of element. Previously metal, non-metal, metalloid, noble gases, they are correct now. But now the modified way, you should know that representative, transition, inner transition and noble gases. Clear करेंगे. And you will see the next video. Just see metals. Metals properties. You know, class 6, 7, 8, 9 जो हमारा ग्रूमिंग क्लासेस रहता है 6 to 9 का, उसमें बच्चों को हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज इतना ह्यूज दे देते हैं कि बच्चों को पता रहता है. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर malleable, ductile, hard, sonorous, luxurious, and you know, just see they all are the metals. बहुत सारे मेटल्स की पिक यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है, आप जा सकते हो, उस पिक को देख सकते हो इजीली. मेटल जो मेटल्स होते हैं फाउंड टू द लेफ्ट ऑफ द zigzag इन द लाइन इन द टेबल. जो अगर आप अभी आपको मैं टेबल दिखाऊंगी, उस टेबल में आपको मेटल्स दिखाई देंगे कि मेटल्स कहां पर प्लेस्ड होते हैं. जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, शाइनी अपीयरेंस होती है, कंडक्टिविटी, मेलेबल, डक्टाइल, सब मैंने बता ही दिया था आपको, ये प्रीवियस क्लासेस में आता है. नॉन मेटल्स राइट ऑफ द zigzag लाइन, इसमें आप देखेंगे आर फाउंड टू द राइट ऑफ द, ये आपको राइट हैंड साइड मिल जाएंगे और इजीली आप देख पाओगे. बट बेसिकली नॉन मेटल्स जो आपको एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे स्टेट में करते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. Few non-metals they are in solid state, even in the liquid state also. But basically ज्यादातर non-metal की जब स्टडी करी जाती है तो वो गैसेस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं. और वही प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर, नॉन शाइनिंग अपीयरेंस, डल अपीयरेंस होती है. कुछ इसमें ड्रॉबैक्स है. I will clear out what are the drawbacks, like bromine water, like iodine, like lots of carbon fiber. बहुत सारे drawbacks होते हैं. Then we will study. अभी the topic is periodic table, so we will continue this trend now. Just see the next table. See the beautiful picture over here. Non-metals. Just see non-metals exist in the gases, liquid and solid as well. गैसेस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे नॉन मेटल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे. लिक्विड फॉर्म में मेटल्स आपको दिख जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में मेटल्स यहाँ पर. सॉलिड में ऐसे आयोडीन हम लोग बहुत यूज करते हैं, लिक्विड में ब्रोमीन वाटर बच्चों को बहुत इजीली पता होता है और उसको ग्रूमिंग क्लासेस से ही हम रिवाइज करवाते हैं. लाइक दिस, बट हर बार टीचर्स पूछता है क्लास में आके, टेल मी वन नॉन मेटल, टेल मी वन लिक्विड नॉन मेटल, बच्चे को याद रहता है ब्रोमीन वाटर. टेल मी वन सॉलिड नॉन मेटल, बच्चे को याद रहता है आयोडीन सॉल्ट करते हैं ना, इसीलिए. ऐसे गैसेस फॉर्म में ये सारे आपको गैसेस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो दे ऑल आर द नॉन मेटल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स द प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटलॉइड्स होते हैं सेमीकंडक्टर, और दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. दोनों की प्रॉपर्टीज को रखते हैं. इनमें क्या होता है? एलिमेंट दैट बॉर्डर इन द zigzag, ये एलिमेंट बॉर्डर में होते हैं, zigzag लाइन में अरेंज होते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से अरेंज होते हैं ये. मेटलॉइड एटम हैव अबाउट अ हाफ कंप्लीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. क्लास 10 पे बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर भी नहीं होता है, टीचर्स इतना फोकस भी नहीं करते हैं. बट यू शुड नो दैट कि व्हाई मेटलॉइड हैव कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई दे हैव यूनिक प्रॉपर्टी, व्हाई दे फॉर्म कलर्ड आयन, व्हाई दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दे फॉर्म. तो वो जो रीजन है ना उन चारों प्रॉपर्टीज का, वो सारा रीजन इस पॉइंट में क्लियर हो रहा है. पूरा रीजन इस पॉइंट में क्लियर हो रहा है कि मेटलॉइड एटम हैव अबाउट half complete set of electron in their outermost shell. They have some properties of metal and non-metal. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. सिलिकॉन का एग्जाम्पल है, आप याद जब आपको देंगे वर्कशीट सॉल्व करने के लिए, आपको पेन ड्राइव, आपको पीडीएफ के थ्रू एक पूरा असाइनमेंट और वर्कशीट भी मिलेगा. यू गो थ्रू माई असाइनमेंट, यू गो थ्रू माई वर्कशीट एंड कंप्लीट इट. सो जस्ट सी
कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी किस तरीके से आप अपनी स्टडी घर बैठ के कर सकते हो। क्लास 9-10 के बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल, क्योंकि क्लास 11-12 का कंटेंट तो ह्यूज मिल जाता है यूट्यूब पर, बट 9-10 का एक प्रॉपर कंटेंट मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है।